Okay, students, see, yesterday we have seen the hypothesis. Okay, we have started with the hypothesis concept and we have seen the features and characteristics of hypothesis. So everybody understood like what exactly the hypothesis and what is the role of hypothesis in research. Okay, when we are doing the research, then how it will going to helpful for us to do the further research activity. Okay, so hypothesis generally we are framing it before conducting the data collection, and the hypothesis will going to give you an idea like in your data collection what type of a question, what exactly the question you should ask, and your research should move on which direction. So that kind of a direction we are able to understand. So it is not so mandatory in the research work ki whatever hypothesis you are framing, it should be accepted always. नहीं कोई जरूरी नहीं रहता है. If it is getting wrong also, still it will be okay. Okay, but whatever you are assuming कि अपने आपके रिसर्च में ये सब ऐसा हो सकता है करके जो आप assumption लगाते हो, that assumption should be that statement when we are writing the hypothesis statement. एक हम लोग सेंटेंस बना के लिखते हैं, तो वो सेंटेंस should be very much simple, clear, easy to understand. It should not going to have any contradictory statement, and it should be framed in a such a way that we can verify the statement also. Okay, then whatever relationship we are showing between two variables, cause and effect, or as basically we are focusing on the problem oriented research. So whatever reason we are giving from the problem, so that should be the relevant one. Okay, and that statement we should able to test also. It means uh, after collecting the data collection we should able to evaluate also. So that kind of a hypothesis should be we need to frame in our research work. Okay, now the nature of hypothesis, it will be same as we have already seen कि मतलब hypothesis कैसे होना चाहिए, क्या उसका नेचर होना चाहिए कि वो इंडिकेट करना चाहिए कि like what is the main basic reason, what is the main cause for the problem which we are studying, and it should give you the direction. So ये already हम लोगों ने पढ़ा हुआ है that it should be valid, it should be relevant, it should be testable and all. So significance of hypothesis and the nature of hypothesis are quite same here. So significance में if you're going to see, stresses need for data. मतलब yes, it gives you the direction like what exactly data you need to collect while collecting the data. ठीक है, उस मतलब वो एक बताते हैं तुम लोग को एक what we can say information देता है कि जैसे we have taken the topic like drug addiction among the youth. So drug addiction among the youth. So we have framed the hypothesis like it is because of what we have seen friend circle, or we can say it is because of the depression. ये हम लोगों ने स्टेटमेंट लिए थे. So stresses the need for data मतलब whatever information we are collecting, basically वो जो information रहेगा their base should be the friend circle. तो हम लोग को friend circle से related question करने हैं. हम लोगों को उनके साइकोलॉजिकल थिंकिंग के बारे में, उनको एक पर्टिकुलर सिचुएशन में कैसा फील होता है, टू अंडरस्टैंड वेदर दे आर रियली गेटिंग, वेदर दे आर रियली डिप्रेस और व्हाट. ठीक है, तो उस डायरेक्शन में डेटा कलेक्शन करने के लिए hypotheses are helping us. So it gives the stresses on the needs of data. Then testable statement, yes, as we already discussed here, what is a testable statement? Whatever sentences we are framing, तो उसको हम लोगों को वेरीफाई करना आना चाहिए कि बाबा ऐसा सच्ची है जो मैंने अजम्पशन किया है वो सच्ची है या नहीं करके. ओके, सो दैट स्टेटमेंट वी आर व्हेन वी आर फ्रेमिंग, इट शुड बी इन अ टेस्टेबल वे, वेरीफाई करना आना चाहिए, आप इतना ध्यान में रखो. देन आइडेंटिफाई सोर्सेज ऑफ डेटा, यस, आइडेंटिफाई सोर्सेज ऑफ डेटा. तो एज वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्रेंड सर्कल, तो ऑब्वियसली मेरे लिए सोर्सेज ऑफ डेटा क्या रहेगा कि मतलब जो उनके स्टूडेंट जो रिस्पोंडेंट रहेगा उनके फ्रेंड्स से भी मुझे बात करना पड़ेगा. सो दैट विल बी माय सोर्सेज ऑफ डेटा ऑल्सो. दूसरी बात है डिप्रेशन के लिए. सो डिप्रेशन like if I am the psychiatrist, then obviously I know that definition very well. I know that what kind of a features, what kind of a nature that person would be having, and what kind of a indication shows that that person is in the depression. Okay, so कभी कभार like हम लोग वो टॉपिक ले लेते हैं बट वी आर नॉट अवेयर कि लाइक व्हाट एग्जैक्टली द इंडिकेशन ऑफ डिप्रेशन एंड ऑल. तो उस टाइम पे वी नीड टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द साइकेट्रिस्ट ऑल्सो. तो वहाँ पे सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन साइकेट्रिस्ट भी हो सकता है कि ये पर्टिकुलर, जैसे हम लोग उनको पूछ सकते हैं कि लाइक आई हैव कलेक्टेड द इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर रिस्पोंडेंट. देन या फिर उससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने से पहले द साइकेट्रिस्ट विल गोइंग टू टेल यू कि क्या एग्जैक्टली आप नोट करोगे, क्या ऑब्जर्व करोगे उसके बिहेवियर में. देन यू विल कम टू नो दैट वेदर दैट पर्सन इज रियली इन द डिप्रेशन और नॉट. ओके, सो दिस वे
your hypothesis will going to help you out to color, like to find out the source of information also. Then identifies types of research. Yes, identify types of research मतलब यहाँ पे क्या रहेगा, जैसे हम लोगों ने देखे थे, देखो बेसिक रिसर्च है, हिस्टोरिकल रिसर्च देखा था हम लोगों ने, एम्पेरिकल रिसर्च देखा था, कैजुअल रिसर्च देखा था, साइंटिफिक सोशल रिसर्च देखा था। तो जो तुम्हारा हाइपोथेसिस है, अगर आपको लगता है कि वो हाइपोथेसिस के लिए मुझे किसी लेबोरेटरी की जरूरत पड़ेगी, ऐसा अगर आप लोगों को लगता रहेगा, तो लेबोरेटरी के हिसाब से इट मीन्स यू नीड टू गो विद द साइंटिफिक रिसर्च एंड ऑल। ओके, सो दिस वे वी विल गोइंग टू गेट द क्लैरिटी। एक मिनट, जस्ट होल्ड। हाँ आई। हाँ कुठे आहेत? कुठं सुरू झाले का? ठीक आहे, ठीक आहे, चालेल चालेल. नाही, मी लेक्चर घेते ना, लेक्चर मध्ये आहे. हम्म? आधी झोपलाय, त्याला झोपून ठेवलंय. हम्म? जा मग व्यवस्थित. हा, मी करते तुला कॉल लेक्चर झालं की. ओके, अच्छा तुम लोगों ने सब सुन लिया, मैंने म्यूट नहीं किया था लगता है माइक को। इज इट? यस टुडे? कोई कुछ बोल नहीं रहा है? ओके, नहीं मैम, कुछ भी नहीं सुना हमने। ओ चलो गुड। ओके, सी हियर, अभी क्या था, हाँ नेचर ऑफ, ये हो गया अपना सोर्सेस ऑफ डेटा, देन टाइप्स ऑफ रिसर्च। सो एज पर अवर हाइपोथेसिस, इफ यू फील दैट, एक मिनट, ये क्या हो रहा है देखो। इफ यू फील दैट कि जस्ट जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, ठीक है, कहाँ तक थे हम लोग? आइडेंटिफाइज टाइप्स ऑफ रिसर्च, ये हो गया अपना। देन अटेन्स ऑब्जेक्टिव। यस, आप लोगों को अभी तक आई थिंक मैंने थोड़ा आइडिया बताया रहेगा कि लाइक हाउ टू फ्रेम द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च। ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च में कैसे फ्रेम करना रहता है तुम लोगों को, लाइक वट एवर टॉपिक यू हैव सिलेक्टेड, तो आपको एग्जैक्टली क्या क्या फाइंड आउट करना है। तो वो प्रॉब्लम, वो जब हम लोग ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग वी आर फ्रेमिंग द हाइपोथेसिस ऑल्सो। तो हाइपोथेसिस हमें अपने ऑब्जेक्टिव्स को मतलब कैसे ऑब्जेक्टिव्स को लेकर कैसे आगे बढ़ना है, उसके बारे में भी वो गाइड करता है। ये आपको मैं क्लियरली आई थिंक नेक्स्ट जब अपना रहेगा, आगे का जो टॉपिक रहेगा उसके अंदर आई थिंक ये ऑब्जेक्टिव्स के बारे में भी रहेगा कि कैसे फ्रेम करना रहता है करके। सो दैट आई विल गोइंग टू टेल यू। देन प्रोवाइड स्पेसिफिक डायरेक्शन। हाँ, ये सबको पता है कि स्पेसिफिक डायरेक्शन मतलब कहाँ से इंफॉर्मेशन लेना है, डेटा कलेक्शन करना है, कैसे एनालिसिस होना चाहिए, दैट वी विल कम टू नो। नेक्स्ट वन ईयर, डेवलपमेंट ऑफ थियोरी। डेवलपमेंट ऑफ थियोरी में मतलब यस, लाइक आफ्टर फ्रेमिंग द हाइपोथेसिस, आफ्टर कलेक्टिंग द डेटा बेस्ड ऑन दैट, then you are coming towards a certain conclusion, और conclusion के according if you find something like yes whatever reason you have taken, वही एक exact reason है आपके problems का, तो उसके according you can even frame the theory also. So this way hypothesis will going to help you to go with the research. So that is what the significance of hypothesis. Now let's start with the types of hypothesis. I think Masuma's video is on, but where is Masuma actually? We cannot see her. I think she must be in the office. Okay. Okay. So here, अभी टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस के लिए ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन वी हैव टू सी, ठीक है, कि फंक्शन के अकॉर्डिंग कैसे हाइपोथेसिस मतलब कैसे का टाइप ऑफ हाइपोथेसिस रहते हैं। तो फर्स्ट वन ये डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस। सो डिस्क्रिप्टिव हाइपो ऐसे डिस्क्रिप्टिव मतलब इन डिटेल, इतना ध्यान में रखो, व्हेन वी आर सेइंग अबाउट द डिस्क्रिप्टिव इट इज इन डिटेल। डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस आर proportions that typically indicate the size, form, rate,
distribution of some variable or state of existence. The variable may be an individual, organization, institution, situation, event, or an object. तभी उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया. फॉर एग्जाम्पल, द करंट अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन महाराष्ट्र एक्सीड 22% of the workforce is a proposition about the size of unemployed group. Similarly, an example about the form of unemployment could be unemployed youth in Maharashtra below the age of 25 do not even have education up to class 10. The researcher can verify this proposition as hypothesis. At times, the researcher poses the problem in the form of question rather than as hypothesis. To what extent do teachers and the student agree in their perception of their roles? देखो यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस मतलब उन्होंने क्या कहा है कि व्हेन एनी प्रोपोजिशन मतलब एनी हाइपोथेसिस इन दैट हाइपोथेसिस इफ वी आर इंडिकेटिंग हम लोग साइज के बारे में बात करते हैं, फॉर्म्स के बारे में, रेट के बारे में, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में. जब हम लोग बात करते हैं तो बड़ा डिस्क्रिप्टिव वे में बात करते हैं, सो इट इज कमिंग इनटू योर डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे उन्होंने कहा, एक हाइपोथेसिस लिया है, द करंट अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन महाराष्ट्र एक्सीड 22% ऑफ द वर्क फोर्स. तो हम लोगों ने कहा है कि जो करंट अनएम्प्लॉयमेंट रेट है महाराष्ट्र का वो ऑलमोस्ट 22% से ज़्यादा हो चुका है अनएम्प्लॉयमेंट का रेट. ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या कहा, डिस्क्रिप्टिव वे में कहा है. मैं यहाँ पे अनएम्प्लॉयड ग्रुप का जो साइज है उसके बारे में बात कर रही हूँ. और डिस्क्रिप्टिव में क्या कहा है उन्होंने, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस, तो उसके अंदर हम लोग साइज रेट के बारे में बात करते हैं. नेक्स्ट वन ईयर अगेन, unemployment youth in Maharashtra below the age of 25 do not even have education up to class 10. अभी आप लोग मुझे बताओ ये क्यों डिस्क्रिप्टिव हो गया? व्हाट डू ऑल से, ये स्टेटमेंट में ऐसा क्या है कि उसके वजह से इसको डिस्क्रिप्टिव कहा जा सकता है? और आप एक बार नोट करो कि कौन सी स्टेटमेंट में कौन सी स्टेटमेंट को डिस्क्रिप्टिव कहा जाता है. वेयर इट विल गोइंग टू इंडिकेट द साइज, फॉर्म, रेट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सम वेरिएबल और स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस. स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस मतलब अभी का करंट सिचुएशन, उसके हिसाब से. तो अभी आपको क्या लगता है कि इसको क्यों कहा गया रहेगा डिस्क्रिप्टिव? इसके अंदर ऐसा क्या कैरेक्टरिस्टिक आपको लगा कि यस ऑन दैट बेसिस इट विल बी कमिंग इनटू डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस? बताओ स्टूडेंट. हम्म, क्या लगता है आप लोगों को? कम ऑन स्पीक अप. उन्होंने ऐसा क्या स्टेटमेंट में लिखा है कि जिसकी वजह से मैं इसको कहूंगी कि ये डिस्क्रिप्टिव है? बोलो. अच्छा चलो मुझे एक बात बताओ कि जब हम लोग डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस की बात करते हैं तो डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस में क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए, ये बताओ मुझे. चलो, just look at the see the screen is there in front of you, you can just read and you can tell me. hmm बोलो. डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस में क्या क्या इंडिकेट किया जाता है? सच्ची बोलो, तुम लोग सो गए हो क्या? Size, form, rate, हाँ. distribution of some variables. हाँ, साइज, फॉर्म, रेट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सम वेरिएबल और वी कैन से स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस. अभी ये जो हम लोगों ने कहा है, अनएम्प्लॉयड यूथ इन महाराष्ट्र बिलो द एज ऑफ 25 डू नॉट इवन हैव एजुकेशन अप टू क्लास 10. ऐसा कहा है कि जो 25 से नीचे के एज वाला जो ग्रुप है, अनएम्प्लॉयड यूथ है, उनका इवन मतलब उनका 10वीं तक का भी एजुकेशन आई जाता, उनका 10वीं तक का भी एजुकेशन नहीं हुआ है. ये उसका है. तो अभी इस सेंटेंस में ऐसा क्या लिखा है कि जिसकी वजह से मैं इसको डिस्क्रिप्टिव कहूंगी? अभी जो पहला स्टेटमेंट था देखो, द करंट अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन महाराष्ट्र एक्सीड 22% ऑफ द वर्क फोर्स. तो यहाँ पे 22% ऑफ द वर्क फोर्स के बारे में कहा है, तो ये मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ? मैं साइज ऑफ अनएम्प्लॉयड ग्रुप के बारे में बात कर रही हूँ, राइट. तो अभी सेम वे में सेकंड स्टेटमेंट में क्या ऐसा बोल रही हूँ कि जिसकी वजह से मुझे ये डिस्क्रिप्टिव कहा जाएगा? बोलो. यहाँ पे भी अगेन द सेम थिंग इज कमिंग हियर आल्सो, द साइज एंड द रेट इज बीन गिवन. यहाँ पे साइज ऐसा है कि अनएम्प्लॉयड यूथ है जिनका एज कैटेगरी बिलो 25 है, ये साइज हो गया. और रेट क्या है कि उन्होंने अभी तक 10 तक का भी एजुकेशन नहीं लिया है, सो दिस इज द रेट. सो यहाँ पे साइज एंड रेट के बारे में बात की गई है, देयरफॉर इट इज कमिंग इनटू डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस. आर यू गेटिंग मी? यस.
Yes. हाँ, अभी देखो थर्ड उन्होंने एक हाइपोथेसिस दिया है। टू व्हाट एक्सटेंट, मतलब उन्होंने कहा है कि हाइपोथेसिस वी कैन इवन आस्क इन द क्वेश्चन फॉर्म। जैसे उन्होंने कहा है, टू व्हाट एक्सटेंट डू टीचर्स एंड स्टूडेंट एग्री इन देयर परसेप्शन ऑफ देयर रोल्स। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि टीचर्स एंड स्टूडेंट्स के बारे में बात हो रही है और उनके रोल्स के बारे में बात हो रही है। सो इट मीन्स व्हाट हियर, हियर आई एम टॉकिंग अबाउट द इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशनल सिचुएशन, इवेंट और एन ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रही हूँ मैं। और मैं यहाँ पे वेरिएबल्स के बारे में भी बात कर रही हूँ। ठीक है, तो आपको समझ में आना चाहिए जब वेरिएबल्स के बारे में बात होती है, कोई इंस्टीट्यूशन के बारे में बात होती है, या किसी स्टेटमेंट में साइज, फॉर्म, रेट के बारे में डिस्कस किया जाता है, सो इट विल कमिंग अंडर योर डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस। नाउ नेक्स्ट वन ईयर, रिलेशनल हाइपोथेसिस। अभी ये ध्यान से सुनना और आपको एकदम क्लियर मीनिंग उसका पता होना चाहिए कि रिलेशनल हाइपोथेसिस क्या होता है। सो वेन एवर आई एम गिविंग यू एन स्टेटमेंट, यू शुड इमीडिएटली पिकअप कि मैम ये किसके बारे में करके ऐसा। ठीक है, चलो सी रिलेशनल हाइपोथेसिस। रिलेशनल हाइपोथेसिस इंडिकेट स्टेटमेंट दैट डिफाइन रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल। ठीक है, रिलेशनल हाइपोथेसिस में क्या रहेगा, हियर वी विल गोइंग टू टॉक अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल, दो वेरिएबल्स रहेंगे। द रिलेशनशिप में बी पॉजिटिव और इट कैन बी द नेगेटिव और इट कैन बी द कैजुअल ऑल्सो। जरूरी नहीं कि वो हमेशा अच्छा ही रिलेशन बताएंगे, कभी उसका गलत मतलब नेगेटिव भी दिखाएंगे, कभी बस एक न्यूट्रल वाला भी, कैजुअल वाला स्टेटमेंट भी दे देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने दिया है, एजुकेटेड फैमिलीज फेवर प्रोफेशनल एजुकेशन फॉर देयर चिल्ड्रन। अभी मुझे यहाँ पे बताओ कौन से दो वेरिएबल है यहाँ पे, कौन से दो वेरिएबल आपको लग रहे हैं। एजुकेटेड फैमिलीज फेवर प्रोफेशनल एजुकेशन फॉर देयर चिल्ड्रन, क्या लगता है यहाँ पे कौन से दो वेरिएबल के बारे में बात किया गया है। Positive. नहीं, पॉजिटिव, यस इट इज अ पॉजिटिव कोरिलेशन। लेकिन मैंने क्या कहा कि रिलेशनल में हम लोग दो वेरिएबल के रिलेशन के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे ऐसे कौन से दो वेरिएबल है कि जिसके रिलेशन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे दो वेरिएबल्स है, एक तो एजुकेटेड फैमिली है और दूसरा है प्रोफेशनल एजुकेशन। ठीक है, और यहाँ पे उसको पॉजिटिव क्यों कहा गया है, बिकॉज दे आर फेवरिंग इट, इसके लिए उसको पॉजिटिव कहा गया है। ठीक है, तो एजुकेटेड फैमिली हमेशा प्रोफेशनल एजुकेशन को ही फेवर करती है। और फॉर देयर चिल्ड्रन, ओके, दैट कुड बी आल्सो द काइंड ऑफ अ रिलेशन, बट यहाँ पे दो वेरिएबल्स की अगर बात करेंगे, then we can take educated family and the professional education, because educated family always think कि their child should get the professional education। तो यहाँ पे दो वेरिएबल क्या हो गया, एजुकेटेड फैमिलीज एंड प्रोफेशनल एजुकेशन। समझा आपको स्टूडेंट, यस और नो। Yes. अभी और एक मैं आपको बताती हूँ, आप लोग मुझे बताओ कि इसको क्यों रिलेशनल कहा जाएगा, इसमें कौन से दो वेरिएबल्स के बारे में बात की है। ओके, सी, families with higher income go for multiple car ownership। स्टेटमेंट क्या है, हाइपोथेसिस क्या है, फैमिलीज विथ हायर इनकम गो फॉर मल्टीपल कार्स ओनरशिप। अभी आप मुझे बताओ यहाँ पे कौन सी दो वेरिएबल्स की बात हो रही है उनके रिलेशन की। High income and multiple car. हाँ, हाई इनकम एंड मल्टीपल कार ओनरशिप, वेरी गुड। ठीक है, एंड यहाँ पे पॉजिटिव रिलेशन है या फिर नेगेटिव है। Positive. यस, वेरी गुड, इट हैज अ पॉजिटिव रिलेशन। और एक उन्होंने कहा है कि रूड सेल्समैनशिप ड्राइव्स कस्टमर अवे। रूड सेल्समैनशिप ड्राइव्स कस्टमर अवे। बताओ यहाँ पे कौन से दो वेरिएबल्स है, टेल मी स्टूडेंट। रूड सेल्समैनशिप मतलब जो एकदम अग्रेसिवली रूडली सेल्समैनशिप करता है, मतलब सेल्समैन रहता है, ड्राइव्स कस्टमर अवे, उसके वजह से कस्टमर नहीं मिलते और दूर चले जाते हैं। तो यहाँ पे कौन से दो वेरिएबल्स की बात की है, बोलो स्टूडेंट। कृतिका, अनामिका,
थोड़ा अपना दिमाग लगा और बोलो मुझे कौन से दो वेरिएबल है यहाँ पे कि जिनके रिलेशन की बात हो रही है. रूल सेल्समैनशिप ड्राइव्स कस्टमर अवे. कौन से दो फैक्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे? Salesman and customer. यस वेरी गुड, इट इज सेल्समैन एंड कस्टमर. अभी यहाँ पे हम लोगों ने सेल्समैन एंड कस्टमर की बात की है, लेकिन वहाँ पे लिखते वक्त मैंने कहा है कि रूड सेल्समैन है और वो कस्टमर को उसके वजह से दूर करता है. तो ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? Negative. Yes, Negative. yes, it is negative here. ठीक है. Why it is negative here? Because that behavior will be the that could result into the loss of a business. Therefore, we are calling it as a negative. समझा स्टूडेंट ने आपको what is relation and descriptive? हम्म. Yes, ma'am. हाँ. Yes, अभी ma'am. अभी देखो कैजुअल हाइपोथेसिस है. हाँ. मतलब देखो डिपेंड ऑन द फंक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन हम लोग कैसे टाइप बनाया. एक हम लोगों ने डिस्क्रिप्टिव का बनाया कि डिस्क्रिप्टिव में हम लोगों ने साइज के बारे में बात किया, रेट्स के बारे में बात किया, फॉर्म्स के बारे में बात किया. ओके. रिलेशनल हाइपोथेसिस में हम लोगों ने दो वेरिएबल्स के बारे में बात किया. नाउ द थर्ड वन ईयर कैजुअल हाइपोथेसिस. The casual hypothesis indicate existence और change. देखो ध्यान में दो. Indicate existence or change in one variable leading to some kind of effect on other variable. मतलब उन्होंने कहा है यहाँ पे. Am I audible student? Yes, ma'am. हाँ ठीक है. Yes, ma'am. हाँ. उन्होंने यहाँ पे क्या कहा है, यहाँ पे भी दो वेरिएबल्स की ही बात हो रही है. ठीक है. लेकिन दो वेरिएबल में देर विल बी कैजुअल रिलेशन. तो कैजुअल रिलेशन मतलब क्या रहेगा कि किसी एक वेरिएबल के वजह से जो दूसरा वेरिएबल रहेगा ना उसके ऊपर थोड़ा इफेक्ट हो रहा है दैट पे. ठीक है. इट इज अ कैजुअल वेरिएबल. मतलब यहाँ पे द फर्स्ट वेरिएबल विल बी द इंडिपेंडेंट एंड द सेकंड वेरिएबल विल बी डिपेंडेंट. बट लेकिन दोनों वेरिएबल में इट विल बी द कैजुअल रिलेशनशिप. अभी ऐसे क्या है एग्जांपल. द प्रेजेंट रश फॉर मैनेजमेंट एजुकेशन इज टूवर्ड अचीविंग सिक्योर फ्यूचर. अच्छा चलो अभी मुझे बताओ यहाँ पे कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल है और कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. चलो पहले ये बताओ दो वेरिएबल कौन से, ये बताओ मुझे. द प्रेजेंट रश फॉर मैनेजमेंट एजुकेशन इज टुवर्ड्स अचीविंग सिक्योर फ्यूचर. इसमें दो वेरिएबल कौन से हैं, कौन से दो चीजों के बारे में बात की गई है यहाँ पे? बोलो स्टूडेंट, क्या लगता है आप लोगों को कौन सी दो चीजों के बारे में यहाँ पे बात की गई है कि जो एक दूसरे के साथ कुछ थोड़ा बहुत रिलेशन दिखाते हैं? बोलो. कम ऑन कम ऑन. मैनेजमेंट. हाँ मैनेजमेंट एजुकेशन और क्या है? Achieving secure future. वेरी गुड. यहाँ पे क्या है फिर, एक एक वेरिएबल है मैनेजमेंट एजुकेशन और दूसरा है सिक्योर फ्यूचर. ठीक है. और एक बात क्या कही गई थी यहाँ पे कि इट इंडिकेट्स द एग्जिस्टेंस. मतलब वो अभी का करंट करंट सिचुएशन के बारे में बात करते हैं, एग्जिस्टेंस के बारे में. सो अगेन व्हाइल राइटिंग द स्टेटमेंट वी हैव यूज्ड द वर्ड लाइक द प्रेजेंट रश. सो हम लोग करंट की बात कर रहे हैं, अभी का रश फॉर मैनेजमेंट एजुकेशन. ओके. सो वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंटली क्या सिचुएशन है करके. करंटली जो लोग मैनेजमेंट मतलब मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वांटेड टू गो विद द मैनेजमेंट एजुकेशन बिकॉज when we will going to have the management education it will going to give you the secure future. ओके. ये दो यहाँ पे वेरिएबल हो गए, मैनेजमेंट एजुकेशन हो गया, सिक्योर फ्यूचर हो गया. अभी आप मुझे बताओ यहाँ पे कौन सा डिपेंडेंट है और कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, बताओ. सिक्योर फीचर आपका किसके ऊपर डिपेंड रहेगा, बोलो. आपका सिक्योर फीचर ये स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग किसके ऊपर डिपेंडेंट है? Achieving secure future. हाँ अचीविंग सिक्योर फ्यूचर ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है? क्या करने के बाद हमें वो सिक्योर फीचर मिलने वाला है? Education. हाँ. तो फिर आपको क्या लगता है ये जो अचीविंग सिक्योर फीचर है ये डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है?
ये डिपेंडेंट है ना। अगर मुझे अगर अच्छा फ्यूचर चाहिए तो मुझे मैनेजमेंट एजुकेशन लेना पड़ेगा। आप समझ रहे हो? तो यहाँ पे मैनेजमेंट एजुकेशन इज इंडिपेंडेंट, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, वो अपने हिसाब से मैनेजमेंट एजुकेशन। लेकिन अगर मुझे फ्यूचर अच्छा चाहिए तो मुझे वो लेना ही पड़ेगा। मतलब मेरा फ्यूचर किसके ऊपर डिपेंडेंट है? मैनेजमेंट एजुकेशन के ऊपर डिपेंडेंट है। इसके लिए दैट फ्यूचर, द सिक्योर फ्यूचर इज द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड मैनेजमेंट एजुकेशन इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। समझा स्टूडेंट आपको? यस और नो? Yes, ma'am. So this is what we can say, casual hypothesis. So casual hypothesis में ये बताया जाता है कि इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब भले ही दो फैक्टर्स रहेंगे, दो वेरिएबल्स रहेंगे, लेकिन फिर भी वो दोनों ऐसे रहेंगे कि एक इंडिपेंडेंट रहता है और एक डिपेंडेंट रहता है। ओके, समझे स्टूडेंट आपको? यस और नो? हाँ, देखो अभी आप बोलोगे मैम लेकिन वो हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? रिलेशनल हाइपोथेसिस एंड कैजुअल हाइपोथेसिस, इसमें भी दो वेरिएबल है, इसमें भी दो वेरिएबल है, तो कैसे डिफरेंसेस पता लगेगा? एक सिंपल एग्जांपल, एजुकेटेड फैमिलीज फेवर प्रोफेशनल एजुकेशन फॉर देयर चिल्ड्रन। अभी ये उन्होंने क्या कहा? यहाँ पे दो वेरिएबल है, एजुकेटेड फैमिली, सेकंड वेरिएबल है प्रोफेशनल एजुकेशन। तो यहाँ पे जैसे एक रिलेशन बताया ना कि ये लोगों को ये पसंद है करके। यहाँ पे उन्होंने कुछ इम्पैक्ट बताया क्या? उधर कुछ इफेक्ट बताया है क्या? No, यस? ma'am. नहीं बताया, ठीक है। सो लेकिन यहाँ पे इम्पैक्ट बताया उन्होंने, मतलब यहाँ पे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट जैसा हो गया। अभी दूसरी एक बात है मैम, आप बोल रहे कि कुछ इफेक्ट नहीं बताया, तो ये क्या है फिर? रूड सेल्समैनशिप ड्राइव्स कस्टमर अवे, ठीक है। तो यहाँ पे फिर भी, यहाँ पे भी तो इफेक्ट दिख रहा है ना कि अगर रूड सेल्समैन से तो वो कस्टमर को भगा देगा करके। तो ये भी तो कैजुअल में आ सकता है। लेकिन यहाँ पे कौन सा डिपेंडेंट है और कौन सा इंडिपेंडेंट है? हियर वी आर नॉट एक्सप्लेनिंग इन दैट वे, हम लोग वो वही से नहीं बता रहे। हम लोग यहाँ पे जस्ट क्या बता रहे कि एक किसी का बिहेवियर की वजह से क्या हो रहा है, मतलब एक जनरल स्टेटमेंट जैसा हम लोग दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम लोग बता रहे करंट सिचुएशन के बारे में बात करें, जैसे यहाँ पे ऑलरेडी बताया गया दैट कैजुअल हाइपोथेसिस इंडिकेट द एग्जिस्टेंस और अ चेंज इन वन वेरिएबल लीडिंग टू सम काइंड ऑफ इफेक्ट ऑन अनदर वेरिएबल। इसको यहाँ, इसके लिए वहाँ पे कैजुअल में आप लोगों को इफेक्ट दिखना चाहिए और वो भी करंट चेंजेस के बारे में दिखना चाहिए। एंड जो दो वेरिएबल रह गए उसमें से डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल को समझ में आना चाहिए। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन हियर, ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। अभी एब्स्ट्रैक्शन मतलब यहाँ पे व्हाट वी कैन से, जस्ट टेल मी द जनरल मीनिंग ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। व्हाट डू मीन बाय द एब्स्ट्रैक्शन? जनरल मीनिंग बताओ मुझे एब्स्ट्रैक्शन का, क्या लगता है आपको? अभी एवरीबडी नो, लाइक ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन सबको पता है कि फंक्शन का मीनिंग क्या होता है। एब्स्ट्रैक्शन का जनरल मीनिंग क्या होता है? टेल मी स्टूडेंट। यस, व्हाट डू मीन बाय द एब्स्ट्रैक्शन? गूगल पे देखो और मुझे बताओ, नहीं अगर आपको आता है तो। हम्म, तुम लोग गूगल पे भी नहीं ढूंढ पाओगे? चलो ढूंढो और बताओ मुझे। खुद से कुछ नहीं ढूंढना है, सब मुझे ही बताना है क्या? चलो बोलो। गूगल में एब्स्ट्रैक्शन का मीनिंग क्या दिया हुआ है? तुम लोग लेक्चर सुन रहे हो या नहीं? यस स्टूडेंट। आशा, बिल्किस, आरती, कृतिका, अनामिका, मुदस्सिर। नहीं सुनाई दे रहा है आशा। नेहा, शिवा, श्रद्धा, महेश्वरी, बोलो व्हाट डू मीन बाय Yes, द ma'am. एब्स्ट्रैक्शन? Abstraction, you are saying thinking about somebody. Masuma, you are thinking about whom? Yes, today यहाँ पे लिखा है thinking about somebody, किसी और के बारे में सोच रहे हो क्या तुम? हाँ, मतलब यहाँ पे है कि इमेजिनेशन,
एक ऐसा इमेजिनेशन के बारे में हम लोग सोचते हैं, दैट वी कैन से। ठीक है। सो यहाँ पे गूगल में दिया है उन्होंने, द क्वालिटी ऑफ डीलिंग विथ आइडियाज रादर देन इवेंट्स। मतलब हम लोग आइडियाज के बारे में डील करते हैं और मतलब इवेंट्स के बारे में ज़्यादा नहीं सोचेंगे। देन और एक है द फ्रीडम फ्रॉम रिप्रेजेंटेशनल क्वालिटीज इन आर्ट। मतलब ये इट्स अ काइंड ऑफ अ इमेजिनेशन, दैट पे वी कैन से। ठीक है। जैसे आइडियाज जैसे हमारे दिमाग में आते हैं कि ये आइडियाज क्या रहेगा करके, तो उसके बारे में जब हम लोग बात करते हैं, सो दैट कुड बी योर एब्स्ट्रैक्शन। सी कॉमन सेंस हाइपोथेसिस। अभी एब्स्ट्रैक्शन के अकॉर्डिंग में क्या होता है? Common sense hypothesis here. Common sense hypotheses work at the lowest level. They indicate existence of certain empirical uniformity and verify common sense proposition. For example, career-minded employees do not prove durable on the job, or women employees are a better stress buster. They are not considered useful hypotheses as the information is already known to others. This does not reduce the importance of common sense hypothesis because what everyone knows may not be the truth. In other words of good and hath, what everybody knows is not known until it has been tested. मतलब उन्होंने कहा है कि कोई कभी कभार हम लोग एकदम कॉमन सेंस वाली बात कर देते हैं। ठीक है। जैसे अभी मासूमा ने एक एक सिंपल वे में बता दिया कि एब्स्ट्रैक्शन इट मीन थिंकिंग अबाउट समबडी। ठीक है। तो यहाँ पे लाइक एवरीबडी मे बी नोइंग दैट कि थिंकिंग अबाउट समबडी कैन बी द एब्स्ट्रैक्शन वगैरह। तो उसके लिए और एक अदर वर्ड है, तो आप लोग बोले कि नहीं ये तो बहुत कॉमन है, ये बहुत कॉमन है करके। लेकिन सच्ची में वैसा है क्या? तो उसको जब हम लोग टेस्ट करना करते हैं, तो ऐसा नहीं होता है कि जो हम लोग कॉमन सेंस की बात करते हैं वो कभी इतना मीनिंगफुल नहीं रहता है, हाइपोथेसिस में उसका क्या मीनिंग है करके, उससे रिसर्च को क्या हेल्प होने वाला है करके। इट शुड नॉट बी इन अ वे इन दैट वे। अगर कोई कॉमन सेंस की भी बात है तो फिर भी हम लोग उसको एज एन हाइपोथेसिस कंसिडर कर सकते हैं। जैसे उन्होंने एक एग्जांपल दिया है, करियर माइंडेड एम्प्लॉयज डू नॉट प्रूव ड्यूरेबल ऑन द जॉब। जो बहुत करियर माइंडेड लोग रहते हैं वो एक ही जगह पे जॉब नहीं करते हैं। वी ऑल एग्री विद दिस स्टेटमेंट स्टूडेंट? आपको लगता है ऐसे बराबर है? यस और नो? कितना अंदर लाए? Yes, ma'am. Yes, ma'am. करियर माइंडेड जो रहते हैं ना Yes, उनको ma'am. हमेशा अलग अलग जगह पे अलग डिफरेंट डिफरेंट अपॉर्चुनिटी चाहिए रहती है। और जैसे तुम लोग जॉब, अगर इसका मीनिंग ये नहीं कि एक महीने में जॉब छोड़ना है करके, एटलीस्ट कुछ साल एक कंपनी में रहने का, उसके बाद में कहीं पे ग्रोथ मिल रहा है तो वहाँ पे शिफ्ट होते रहने का, so that your salary will also going to get increased and you will be able to learn something new. Okay. So career minded people are always having that kind of a point of view. तो ये सबको पता है कि जो लोग करियर माइंडेड रहते हैं वो लोग हमेशा जॉब चेंज करते रहते हैं। देन अगेन वुमन एम्प्लॉयज आर बेटर स्ट्रेस बस्टर। ये भी बहुत कॉमन सेंस की बात है कि अगर वुमन एम्प्लॉयज रहेगी तो वो काफ़ी मतलब अपना स्ट्रेस कम कर सकती है। एम आई राइट स्टूडेंट? यू आई थिंक आई शुड गेट दिस आंसर फ्रॉम द बॉयज साइड। व्हाट यू ऑल से बॉयज? ऐसा लगता है आपको अगर क्लास में लड़कियां नहीं रहेंगी तो फिर आपको पढ़ाई में ध्यान नहीं रहेगा, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? या फिर आपको ज़्यादा स्ट्रेस आएगा? इज इट समथिंग लाइक दैट? लेकिन लड़कियां है तो थोड़ा मतलब वहाँ पे अलग अलग माहौल रहता है, थोड़ा मज़ा आता है। व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू फॉर द वुमन? यस, कम ऑन। थिंक फ्रॉम योर कॉलेज क्लास पॉइंट ऑफ व्यू एंड टेल मी। जिस दिन क्लास में एक भी लड़की नहीं रहेगी तो उस दिन का माहौल कैसे रहेगा, और जिस दिन क्लास में बहुत सारी लड़कियां रहेगी उस दिन का माहौल कैसे रहेगा? ऑन विच डे यू विल फील मोर हैप्पी? यस, बॉयज में कौन कौन है ये यहाँ पे? आई थिंक मनोज इज देयर एंड शिवा इज देयर, मुदस्सिर इज देयर। यस, मुदस्सिर, मनोज, शिवा, टेल मी योर पॉइंट ऑफ व्यू। दोनों मत, तुम लोग बात कर सकते हो। मनोज, मैंने आपको एक कॉमन सेंस की बात कही है, तो मुझे मुझे जानना है कि सच्ची में बॉयज में ऐसा मतलब ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू रहता है क्या? चलो बोलो जल्दी। तुम लोग डरो मत, तुम लोग को लड़कियां मारने नहीं वाली है। कम ऑन। अभी ऐसा मत बोलो कि मैम क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है दैट द वुमेन्स आर कंसिडर टू बी बेटर स्ट्रेस बस्टर, ऐसा ये क्वेश्चन है। ठीक है। तो मेरा आपको ये क्वेश्चन है कि अगर वुमेन सच्ची में स्ट्रेस बस्टर रहते हैं कि उससे थोड़ा स्ट्रेस कम हो जाता है, तो सच्ची में जब तुम्हारे क्लास में अगर कोई, अच्छा रुको रुको, मुझे एक आंसर आया है। नहीं, मनोज का ये बहुत न्यूट्रल आंसर है।
ये बहुत ज्यादा न्यूट्रल आंसर है। ओके, गर्ल्स के बिना भी चलेगा और गर्ल्स के साथ भी ठीक है। ओके चलो, बहुत न्यूट्रल है। बट आई थिंक नहीं, अगर लड़कियां रहेगी तो अच्छा रहता है। मतलब इवन इफ विल गो टू सी कि जिस घर में लड़की रहती है बेसिकली, मतलब भले वो आपकी माँ रहने दो या फिर आपकी बहन रहने दो, कोई भी कोई एक लड़की अगर घर पे रहती है तो वो घर का माहौल थोड़ा अलग रहता है। जस्ट इमेजिन करो आपके घर में पूरी तरह से आपके पापा है, आप है, आपका भाई है, आप सब बॉयज बॉयज ही रह रहे हो, तो वो घर का हालत कितना बेकार रहेगा, है कि नहीं? एग्री और नॉट? तो इसके लिए माँ का होना जरूरी है, बहन का होना जरूरी है, वाइफ का होना जरूरी है घर पे। isn't it? So girls are, yes, even I can say they are the stress busters. कभी कभार स्ट्रेस भी देती रहेगी आप लोगों को, इसके लिए आप इतना टेंशन में आके कोई बात नहीं कर रहा है। ओके चलो, कोई बात नहीं। एम आर आई शिवा और मुदस्सिर दोनों ने एक भी जगह से आंसर नहीं दिया, दो बस बस मनोज ने एक आंसर दे पाया मुझे, बाकी कोई नहीं। ओके, नेक्स्ट ईयर कॉम्प्लेक्स, क्या गर्ल्स साफ सफाई पसंद करते हैं? हाँ, गर्ल्स साफ सफाई पसंद करते हैं। अच्छा, मतलब गर्ल्स को क्या घर पे साफ सफाई करने के लिए चाहिए क्या? ऐसा कुछ नहीं रहता कि गर्ल्स साफ सफाई के लिए हो। गर्ल्स, आर यू लिसनिंग द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बॉयज? यस, वो लोग यहाँ पे मुझे लिख रहे हैं कि गर्ल्स साफ सफाई पसंद करते हैं। मनोज ने कहा है कि मैम मेरा मतलब वो नहीं था। हाँ ठीक है चलेगा। बट व्हाट हैपेंड, व्हाई यू पीपल आर नॉट टॉकिंग टू मी, व्हाई यू आर राइटिंग इन इट इन द चैट बॉक्स? यस, बोलो ना। अदरवाइज मुझे बोर होता है फिर पढ़ाने के लिए, तुम लोग बोलते नहीं हो कुछ, तो बोलते रहो, झगड़ा करो चाहिए तो क्लास में, चलेगा मुझे। हाँ, अभी यही तो टाइम है एक दूसरे की टांग खिंचाई करने का, वैसा करो, इट्स ओके फॉर मी। बट यू आर जस्ट चैटिंग, एंड दैट चैटिंग आल्सो यू आर गिविंग टू डायरेक्टली टू मी। तो एवरीवन के लिए डालो ना, सबको देखने दो क्या क्या लिख रहे हो करके। ठीक है, नेक्स्ट टाइम पे। आज आज तुम लोग लेकिन बहुत ठंड हो, मतलब कुछ ज्यादा आंसर नहीं दे पा रहे हो। म्यूजिक चालू है, ओके। हाँ सही है। देखो मुदस्सिर ने कितना अच्छे से लिखा है, साफ सफाई के बारे में लिखा है लेकिन बहुत अच्छे से लिखा है कि गर्ल्स के गर्ल्स के होने से सब चीजें ऑर्गेनाइज होती है। यस यस, इट इज वेरी गुड, वेरी वेल। बॉयज कोई ऑर्गेनाइज नहीं करता है। ओके, सी इट शोज लेस देन 1 minute स्टूडेंट। Manoj, please take the screenshot. Remaining part we're going to say it on the next lecture. And in the next lecture, please be active. Instead of giving it on a chat box, talk to me. Okay? Talk to me मतलब बात Yes, ma'am. करो। ओके ओके, चलो। ओके बाय स्टूडेंट। Thank you. Bye, ma'am. Junior.